آپ نے دیکھا کہ جو ہفتہ وار مہنگائی ہے SPI وہ مزید کم ہو کر 3.57 پہ آ گیا ہے۔ کون سی دنیا میں رہتے ہو بھائی تم لوگ اس دھرتی پہ ہو یا 45,000 فٹ کی بلندی پہ جہاز میں بیٹھ کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہو؟ آپ کی مہنگائی انکریز کر رہی ہے، زمین سے اٹھا کے آپ 40,000 فٹ پہ مہنگائی کو لے گئے ہیں، اور وہ ریٹ آف انکریز ہے۔ انفلیشن کا ڈیفینیشن پوچھیں، ریٹ آف انکریزز آف پرائسز اوور اے پیریڈ آف ٹائم اینڈ دیٹ ٹائم از 1 year۔ میں اکانومسٹ تو نہیں ہوں، اور جہاں تک میرا علم ہے لیڈر آف اپوزیشن کچھ جانتے ہیں، کچھ میری طرح نہیں جانتے اکنامکس کے بارے میں۔ انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں جو فیکچولی میں درست کرنا چاہوں گا۔ یہ جو انفلیشن اور یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ جو انڈیکس تیار ہوتے ہیں، یہ کوئی حکومتی فریم ورک کے اندر نہیں ہوتے۔ آپ ہی نے اس ہاؤس میں لا بنایا، اور بلکہ اس وقت آپ ہی کی حکومت تھی جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ریسٹرکچر کیا گیا IMF کے کہنے کے اوپر، اور اس کو ایک ٹوٹلی انڈیپینڈنس دے دی گئی۔ اب یہ سارا چیزیں اس فریم ورک میں بھی ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو میں بڑے ادب سے یہ عرض کروں گا کہ مہنگائی کی شرح نیچے گئی ہے، انفلیشن نیچے سنگل ڈیجٹ میں آئی ہے، تو آپ کا انٹرسٹ ریٹ بھی 23% سے آج 15% پہ ہے، جو کہ توقع کی جا رہی ہے۔ جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اور نیچے آئے گا۔ میرے جوڑے میں گیندے کا پھول، میں تجھے کیسے دیکھوں؟ میرے جوڑے میں گیندے کا پھول، میں تجھے کیسے دیکھوں؟ میرے جوڑے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے نقاب نیوز چینل اور AB's ڈائلاگ لے کے حاضر خدمت ہیں ونس اگین، گیندے کے پھولوں کے پیچھے بلکہ گیندے کے پھولوں کے آگے بیٹھ کر عدیل مرزا اینڈ بی یعنی بالم۔ مرزا صاحب، مار ڈالا اس مہنگائی نے، ہائے ہائے یہ مہنگائی ایک دم گیندے کے پھول سے نا آپ مہنگائی میں لے آئے یار۔ گیندے کے پھولوں یار، کو وہ کبھی میں اتنا مزہ لے رہا تھا آپ کے گانے کا، گیندے کے پھولوں کا، تھوڑی دیر اس مزے میں تو رہنے دیتے یار میں بھی اس مزے سے نکل آیا نا ایک دم سے۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں جب شادی ہوئی میں اپنی بیگم کو گیندے کے پھولوں کا لے جا کے گلدستہ بنا کے پیش کیا کرتا تھا، وہ پونے پونے مل جاتا تھا پھول۔ اب بھائی میں بیگم کو دینے کی بات کر رہا ہوں، میں تمہاری بیگم ہوں کیا جو مجھے یار جب آپ نے کہا کہ میرے جوڑے میں گیندے کا پھول، ہاں تو پھر یہ جب ایسا منظر آپ فلماؤ گے، ایسا سین وہ دکھاؤ گے، تو پھر میں آپ کو گیندے کا پھول ہی پیش کروں گا۔ لو جی، کیا کروں؟ میں نے آپ کی محبت کا گیندے کا پھول اپنے زلفوں میں اٹکا لیا ہے، پھنسا لیا ہے۔ یہ محبت تو آپ اپنے پاس سے ڈال لی ہے۔ ہاں چلے اچھا مرزا صاحب، میں وہ مہنگائی پہ یوں چلا گیا کہ یار وہ گیندے کے پھول اور باقی پھول گلدستہ ایک بنا کے صبح صبح لے جا کے جو ہے بیگم کو پیش کیا کرتے تھے تاکہ ماحول خوشگوار رہے سارا دن گھر کا۔ لیکن پھر جوں جوں وقت آگے بڑھتا گیا، مہنگائی بڑھتی گئی، چیزیں جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے تتلی کے رنگوں کی طرح سے اڑتی گئی، اور ہم جو ہے اب اس دور میں آ گئے ہیں کہ ایون ہماری شادی کی سالگرہ پہ بھی ایک پھول، میں نے پھر آ گیا تھا کہ وہ پھولوں کے پورے ایک گلدستے سے پھر ایک پھول پہ آ گئے تھے کہ شادی کی سالگرہ ہوئی تو ان کو ایک گلاب کا پھول دے دیا، یا کوئی ہمارا جو ہے ان کی سالگرہ یا میری سالگرہ، ہم دونوں ہی کیپریکونین ہیں، تو میں 19 کی پیدائش ہے، ان کی 10 کی پیدائش ہے جنوری کی، تو پھول پہ چلے گئے، ایک گلاب پہ چلے گئے۔ اب یار یہ گلاب بھی مہنگا ہو گیا۔ اچھا، مہنگائی کا محبت سے کیا تعلق ہے یار؟ جب ہماری شادی ہوئی تھی مہنگائی تب بھی تھی، وہ اس وقت میں بڑا ایک نعرہ مشہور ہوا تھا کہ آئے آئے مہنگائی، اڈا پیر بدائی کہ پٹو دی شامت آئی۔ تم تو پیر بدائی والے ہو نا؟ ہاں، پنڈی والا، لگا لو پنڈی وال ہو نا، بیچارے کی شامت۔ ہاں پنڈی وال ہو نا۔ اچھا ویسے بنیاد پاکستان میں مہنگائی کی اگر تھی تو لوگ یہ سمجھتے کہ بھٹو صاحب کے دور میں تھی۔ سمجھتے اصل میں مہنگائی ہر دور میں ہوتی ہے، جی جی، بھٹو کے دور سے لے کر، اچھا جب جو آپ بات کر رہے ہو نا یہ گیندے کے پھول یہ فری مل جاتے تھے، تب بھی مہنگائی لگتی تھی ہمیں۔ جیسے کہ میں نے کہا یہ نعرہ مشہور ہو گیا تھا، روٹی پکی پکائی، اڈا پیر بدائی، تے
पुट्ठो दी ये महंगाई। हाय हाय महंगाई तो पुट्ठो दी शामत आई। हाँ ये उस वक्त भी महंगाई लगती थी, और उससे पहले अयूब खान ने 4 आने चीनी की कीमत बढ़ाई थी, ओ इनकलाब आ गया था सर। इनकलाब आ गया तो इस्तीफा देना पड़ गया था। नवाब मुजफ्फर हुसैन खान साहब हमारे इलाके के जो है वो एक सरकर्दा रहनुमा थे। मुझे याद है यार कि वो दिन में तो 40-50 लोग होंगे उनके पीछे, और वो महंगाई हाय हाय महंगाई करते हुए फिर रहे थे। और फिर शाम को जहन में ऐसे ही कि उसी शाम, लेकिन शायद इसी असना में जो है ये जो महंगाई है ना, अयूब खान ने महंगाई डिजाइन किया था। महंगाई के हवाले से जितनी भी मुहिम जो हुई है ना, जब भी हुई है, जिस भी मुल्क में हुई है, जिसने भी की है, वो हमेशा कामयाब हुई है। महंगाई एक इशू है अवाम का, बिल्कुल जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है, हमारे वजीर आज़म शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई है। आपने देखा कि जो हफ्तावार महंगाई है SPI, वो मज़ीद कम होकर 3.57 पे आ गया है महंगाई का। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि मुल्क के अंदर अमन व सुकून, सियासी इस्तेहकाम एक जुज़्व है पाकिस्तान की माशी और तरक्की के लिए, पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए। आप यकीन करें कि इस वक्त हमारे दोस्त बरादर ममालिक जो बहुत चाहत के साथ, कल मेरे पास अज़रबैजान के सफ़ीर आए थे और मुझे उन्होंने पैगाम दिया कि फरवरी में आपका दौरा है अपना अज़रबैजान का, तो उससे पहले $2 अरब के जो हमारी उनकी इन्वेस्टमेंट है अज़रबैजान की पाकिस्तान में, उन मंसूबों की न सिर्फ निशानदेही हो जानी चाहिए बल्कि मुकम्मल तौर पर उनकी फिजिबिलिटीज़, ताकि उसके ऊपर मुआहदे किए जाए। तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की काविश, मेहनत और ज़ौक़ के नतीजे में एक सेंटिमेंट बिल्ड हो रहा है। तो जी मिर्ज़ा साहब, जैसे कि मियाँ शहबाज शरीफ बता रहे थे, इदारा शुमारियात ने भी एक रिपोर्ट जो है वो उसकी भी सामने आई है, और उन्होंने भी तकरीबन जो है वो इनसे मिलते जुलते ही जो है वो आदाद व शुमार नवंबर की दिए हैं। रिपोर्ट है ये नवंबर तक की रिपोर्ट है, और इसमें वो यानी कमाल, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैं तो ये समझता हूँ कि हम बचपन से बड़े हो गए और बहुत बड़े हो गए, मगर ये जो आदाद व शुमार सामने आ रहे हैं और जो 78 माह की कमतर, यानी यहाँ तो अब आलम ये हो गया था कि पिछला एक दौर गुजरा जिसमें सुबह कोई रेट होते थे, दोपहर में कोई और रेट होते थे और शाम में कोई और रेट, और बढ़ते चले जाते थे। सुबह एक चीज़ आपने जो है वो 100 रुपये की खरीदी है, दोपहर में जनाब वो आपको 150 की मिल रही थी, और शाम में वो 200 रुपये की हो जाती थी। यहाँ तक कि जान बचाने वाली अद्वियात जो हैं ये भी कई 100% इनके रेट जो है वो बढ़ गए थे। लेकिन ये कमाल जो है वो इस दफ़ा ये सामने आ रहे हैं आदाद शुमार इदारा शुमारियात की जानिब से। वो कहते हैं कि 78 माह की कम तरीन सतह पे ये तो एक सर इनकलाब आ गया है। आदाद शुमार क्या है? ये नवंबर तक के, जैसे आपने बताया कि वो जो 10 डिजिट 2 डिजिट पे जो है आदाद शुमार आते थे महंगाई के, महंगाई जो है वो 2 डिजिट पे शुमार की जाती थी। अब वो सिंगल डिजिट तो क्या बल्कि वो 9 से भी नीचे आके नवंबर में 4.9 पे आ गई है। तो यार ये तो अनहोनी वाली बात है कि पाकिस्तान में इस कदर जो है वो अर्जानी आ गई है। यार चीज़ें तो जो भी खरीदने जाओ वो रेट बड़े हुए होते हैं, पता नहीं ये आदाद शुमार कहाँ से आते हैं अदारा शुमारियात के पास। सर ये 2023 में आदाद शुमार जो है ये इदारा शुमारियत के वो बताते हैं कि 29.2% पे जो है वो आ गई है महंगाई, और शहरी इलाकों में ये 2024 में 5.2 पे आ गई है, और देही इलाकों में 4.3% जो है वो आ गई है उस पर। अच्छा, कुछ अशिया के अभी इन्होंने जिक्र किया स्पेशली जो कि रोज़मर्रा जो हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल में इस्तेमाल होती हैं, ज़्यादा वाफिर मक़दार में इस्तेमाल होती हैं। घी, कुकिंग ऑयल, मक्खन, ड्राई फ्रूट, मछली। अच्छा, इसमें ड्राई फ्रूट और मछली तो सीज़न है ना, ये सर्दी आ जाती है तो ये ऑटोमेटिकली इनके रेट जो है वो आसमान पे पहुंच जाते हैं। ये हम यूज़ टू हैं, ये हमारा मामूल है। लेकिन घी, कुकिंग ऑयल, मक्खन वगैरह ये महंगे हुए हैं।
इन्हीं आदाद शुमार के मुताबिक। और चिकन तो वाकई सर 400-450 के आगे, और दालें, सब्जियां, फल ये सस्ते बताए हैं इदारा शुमारियत। अच्छा। जबकि अनार जो है मिर्जा साहब अभी चंद रोज पहले तक 250 रुपए था, अब 500 रुपए पे पहुंच गया। ये कौन सी सस्ताई है? हाँ, मैं यही कह रहा था, आप खुद ही अब बात कर रहे हैं, खुद ही अपनी बात की आप नफी कर रहे हैं। हाँ जी, नहीं वो तो इदारा शुमारियत के आदाद शुमार है, यही हमारी बात तो मुख्तलिफ होती है। हाँ जी, यही मैं कह रहा हूँ। क्योंकि हम तो आवाम में आते जाते हैं, चीजें खरीदते हैं, हमें तो पता है। हाँ जी, बिल्कुल यही मैं कह रहा था। जब आप 76 साल 78 माह, ये 76 माह कहते हो ना, हाँ। इट मीन्स के 6 साल पहले यही हो गया ना। हाँ, 12 माह का एक साल हुआ ना। बिल्कुल। 12 6 72, हाँ। 6 साल। हाँ अब बात ये है कि 6 साल पहले कुकिंग ऑयल आप कितने का लेते थे? कुकिंग ऑयल का एक पैकेट हाँ 280, हाँ 270। जी जी। आप आज वो है 530, 540। और ये अभी बढ़े हैं रेट, अभी रेट बढ़े हैं इसके। ये तकरीबन कोई 450 था कि 500। 450 ही कर लो, हाँ। 450 भी कर लो, 400 भी कर लो, चलो हाँ। मैं मान गया आपकी बात। हाँ ये 29% कहाँ थी अब 5-6 साल पहले? ये कहाँ से अदा? पता नहीं यार। ये अब चावल का क्या रेट था? हाँ। जो चावल आपको 120, 130, 140 पे किलो मिलता था ना, वो आपको 350, 400 अदवार तो 70-80 पे मिल जाता था भाई। मैं जब लाहौर में आया हूँ 10 साल पहले, तो ये 70-80 रुपए जो है अदवार मिल जाता था। चीनी की कीमत इमरान खान के दौर में जब 50 रुपए किलो से 100 रुपए गई ना, हाँ। तो हमने आसमान सर पे उठा लिया था। बिल्कुल बिल्कुल। आज वो 130 है, हाँ। 140 है। कहाँ से ये 6 माह की कम तरीन सतह पे आई है? मुझे नहीं ये पता कि ये जो अदाद शुमार दिए हैं, अदारा शुमारियात ने, ये पता नहीं कहाँ से दिए हैं। आप हर महीने जब आप, मेरा ना शुरू से एक रूटीन है, पूरे महीने का एक गट्ठा सौदा हम ले लेते हैं। हर दफ़ा बजट ज़्यादा ही, मैं घर से ही जहन में ये बना के जाता हूँ 500,000 ज़्यादा ही देना पड़ेगा। सही बात, सही बात। पता नहीं कम कहाँ से होते हैं, कहाँ से आते हैं। असल में ये जो कौमी असम्बली, ये जो चीज़ है ना, अदाद शुमार, ये जो अल्फाज का गोरख धंधा, ये असम्बली में मेरे ख्याल तकरीरों के लिए है। ये अभी एक तकरीर की है आपके अपोजिशन लीडर ने, उमर अयूब ने भी, ये भी ज़रा सुन लें। कौन सी दुनिया में रहते हो भाई तुम लोग इस धरती पे हो या 45,000 फुट की बुलंदी पे जहाज में बैठ के स्टेटमेंट्स दे रहे हो? आपकी महंगाई इंक्रीज कर रही है, जमीन से उठा के आप 40,000 फुट पे महंगाई को ले गए हैं, और वो रेट ऑफ इंक्रीज है। इन्फ्लेशन का डेफिनेशन पूछे, रेट ऑफ इंक्रीजेस ऑफ प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट टाइम इज 1 ईयर। हु कैन से कि ये इन्फ्लेशन नीचे आ गई है? कौन कह सकता है? इन देयर राइट माइंड कोई बंदा कह सकता है? झूठ है ये। मैं चैलेंज करता हूं कोई यहां पे बात करे कि इन्फ्लेशन नीचे आ गई है। इंक्रीज आ रही है, नंबर 1। नंबर 2, जनाब स्पीकर, यहां पे बात कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ फाइनेंस कमेटी में, वहां पे FPR चेयरमैन ये सारे वहां पे मौजूद थे। और मैंने एक बात की थी फाइनेंस मिनिस्टर को कि जब आप जा रहे थे IMF के पास 17 सितंबर 2024, वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो अजम्पशंस आप ले रहे हैं वो आपके फॉल्टी हैं। मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, और जहाँ तक मेरा इल्म है, लीडर ऑफ अपोजिशन कुछ जानते हैं, कुछ मेरी तरह नहीं जानते इकोनॉमिक्स के बारे में। उन्होंने कुछ बातें की हैं जो फैक्चुअली मैं दुरुस्त करना चाहूँगा। ये जो इन्फ्लेशन और ये सारी चीज़ें हैं और ये जो इंडेक्स तैयार होते हैं, ये कोई हुकूमती फ्रेमवर्क के अंदर नहीं होते। आप ही ने इस हाउस में लॉ बनाया, और बल्कि उस वक्त आप ही की हुकूमत थी जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को रिस्ट्रक्चर किया गया IMF के कहने के ऊपर, और उसको एक टोटली इंडिपेंडेंस दे दी गई। अब ये सारा चीज़ें उस फ्रेमवर्क में भी होती हैं, और ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ। तो मैं बड़े अदब से ये अर्ज़ करूँगा कि महंगाई की शरह नीचे गई है, इन्फ्लेशन नीचे सिंगल डिजिट में आई है, तो आपका इंटरेस्ट रेट भी 23% से आज 15% पे है, जो कि तवक्को की जा रही है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ये और नीचे आएगा, और इसमें ये जो डिस्पैरिटी है ये ख़त्म होगी। तो मेरी सिर्फ ये इस्तदा है, आप हम पे तनकीद भी किया करें, हमारी तस्हीह भी करें, लेकिन फैक्ट्स और फिगर्स को जोश खताबत में कई दफ़ा हमसे भी हो जाती है, ये भूल चूक इधर से भी हो जाती है। लेकिन कभी कभी अगर कोई चीज़ अच्छी हो रही है, आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है, वो कुछ ऐसे मेजर्स थे, जैसे हमारा प्रॉपर्टी साइड पे रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स जा रही थी, वो जब उस टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से वहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स आई हैं, तो लोगों ने अब
ادھر انویسٹ کرنا شروع کیا ہے. آپ کے بزنسز میں انشاءاللہ بہتری آئے گی.